Hello everyone, this is Jayesh Wag. Welcome to the Pathfinder channel of the Unique Academy. Today we are going to discuss about JEE main exam. The first stage of the JEE exam is the main exam, and today we are going to talk about the various details of this particular exam. What is the pattern of this exam? What is the eligibility? What all syllabus you have to study for this particular exam? इन सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं. So let us start. So first of all, this particular exam, it is conducted by uh, the National Testing Agency. It is an independent agency which has been given the responsibility to conduct JEE mains as well as JEE advanced, both the exams. So where do we go? Where do we go by giving this exam? So through this exam, you are going to go to various institutions, various engineering institutions like IITs, first of all, the most prestigious engineering institutions in India, Indian Institute of Technologies. So previously, initially, अगर हमारे टाइम में बताया आपको तो बस 7 IITs थी, 7 IITs were there. Today we have total 23 different IITs. तो काफी नंबर बढ़ चुका है ये कॉलेजेस का. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि टॉप जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में वहां पर आप जा सको. Along with that, you can also go to NITs through this exam. NITs होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज ये पहले RECs होते थे, रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिनको कहा जाता था. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में डिसाइड किया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनको भी हम एक नेशनल लेवल पर लेकर आते हैं, ताकि जो अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी हो कि अलग अलग जो रीजनल कॉलेजेस है, अच्छे क्वालिटी के कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया, वहां पर जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिले. तो पहले एनआईटीज में जाने के लिए आपको AIEEE एग्जाम देना पड़ता था. नाउ यू हैव टू go to these NITs through the JEE main exam. Then there are also institutions like the triple ITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये मेनली आपके कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज अवेलेबल करा के देते हैं. सो इसके अलावा भी कुछ सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस CFTIs होते हैं जिनमें आप जा सकते हो. जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है बैंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तिरुवनंतपुरम में. इन जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी आप एडमिशंस ले सकते हो JEE मेंस के. इसके अलावा भी कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो आपको JEE का आपका स्कोर देखकर आपको एडमिशंस वहां पर देता है. सो थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम JEE मेन, ये जो IITs है, NITs है और ट्रिपल IITs है, इनके लिए आप बेसिकली ये एग्जाम देने जा रहे हो. और यहाँ पर कोर्सेज आपको कौन से मिलने वाले? द कोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू गेट इज either Bachelor of Engineering or Bachelor of Technologies. Along with that, if you are interested in architecture or planning, तो BArch और B planning के courses भी इसमें आपको दिए जाते हैं. Okay. So if you are aspiring to be an engineer in India, if you are aspiring to be a good engineer in India, so आपको JEE मेंस को क्लियर करना है यहाँ पर. और उसी के लिए फिर आपको ये जो पेपर 1 है वो देना होता है. पेपर 1 is for BE and BTech courses. If you wish to apply for Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology courses, by the way, BE और BTech में डिफरेंस क्या होता है? There is not much difference. डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि BTech courses जो होते हैं उनमें ह्यूमैनिटीज वाला पार्ट भी जोड़ा जाता है. There is a part called as humanities that is also taught you under the courses BTech. ठीक है. So there is not much difference between BE and BTech कि BTech better होता है या BE better होता है. There is not much difference. BTech में बस difference ये होता है कि कुछ humanities के courses भी इसके साथ जोड़े जाते हैं engineering के अलावा. So if you are aspiring to be an engineer, this is the course that you will be choosing. Then we have पेपर 2. पेपर 2 जो होता है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आर्किटेक्चर या प्लानिंग में जाना चाहते हैं. सो पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बी एन आर्किटेक्ट और प्लानिंग बैचलर, फॉर देम दे हैव टू गिव पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. ओके, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने हैं. सो लेट अस लुक एट व्हाट द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर 1 इज. उसके पहले थोड़ा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. So candidates who want to apply for JEE mains, they should either be a pass out from class 12, 10+2 में आप क्लियर होने चाहिए, या फिर आप जो है
एटलीस्ट appearing होने चाहिए. You should be an appearing student in class 12. Along with that, there are some other criteria like for BE and BTech candidates, it is necessary for you to have physics and mathematics along with either chemistry or biology or biotechnology as your subjects in 10+2. 10+2 में आपके physics, maths ये compulsorily होनी चाहिए subjects, but along with them, the third subject can be either chemistry or it can be biology or biotechnology. This is the mandatory eligibility that is required if you want to apply for BE or BTech. Okay, for BR candidates who want to apply for B architecture, for them physics, chemistry and maths is a compulsory subject 10+2 mein. Along with that, there is a criteria of 50% marks. 50% marks minimum आपके होने चाहिए. Recently ये जो BE BTech courses है, इसमें भी पहले क्राइटेरिया होता था मार्क्स का 75% का, बट रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट हैज नाउ, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने कहा है कि अब ये जो BE BTech कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन करना होता है आपको, उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा. So there is no longer marks criteria for you. The only criteria that would be taken into consideration is your marks in the entrance exam. Okay. So for BR courses, you need at least 50% marks in 12th standard to qualify for this exam. ये exam के लिए qualify होने के लिए आपके पास कम से कम इतने marks होना जरूरी है. Then for B planning की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी mathematics एक compulsory subject है. Even if you don't have physics or chemistry or bio, it will do, but you have to have mathematics as a compulsory subject in class 12. Okay. कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? So total consecutive 3 attempts are allowed in JEE main. In JEE main, total 3 attempts are allowed. There is no age limit criteria for JEE, but then of course ये जो criterias है JEE के लिए हम देख रहे हैं, since it is a new exam that the government of India has come up, so there are criterias are changing from time to time. So it is advisable कि आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो, like for example 2020 का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, तो एग्जाम के नोटिफिकेशन जब आएगा तब उसमें एक बार चेक कर लीजिए. Along with that, you should also go and check, जब आप एग्जाम दे देते हो, आपका स्कोर आ जाता है, काउंसलिंग वगैरह हो रहा है, तो उस समय जिस भी आप इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो वो इंस्टीट्यूशन में उसका कुछ एज क्राइटेरिया है या नहीं है, उसको एक बार चेक कर लेना. ओके, मूविंग ऑन देन. Now let us look at the paper 1. Paper 1 that is for BE and BTech courses. तो ये पेपर किस तरह से होगा? The mode of the paper is completely computer based. ये पूरा पेपर आपको कंप्यूटर पर देना है. So the test duration for this particular paper is 3 hours. You'll have to give the entire paper in this 3 hours. If you are a physically challenged person, तो उनके लिए, persons with disabilities के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है. 40% or more disabilities you should have for that. Languages available in different states, different languages are available. So English, Hindi, Assam, Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu are the languages available for you to give this particular exam. Okay. What are the different type of questions here? 2 तरह के questions होते हैं. एक multiple choice questions है और questions with numerical values. यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके ऊपर कुछ आंसर्स, ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है. न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, रादर एक स्पेस दिया जाएगा आंसर आपको टाइप करने के लिए, और वहां पर आपको आंसर जो है अपना टाइप करना है. ओके. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कौन से है? ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में आप जा रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स are the subjects that are from which questions are going to be asked in this particular paper. Okay, physics, chemistry और maths कौन से लेवल का पढ़ना है? अगेन आपको NCERTs पढ़ने हैं 12th तक के. 12th के जो NCERTs है 11th 12th के, उनको पढ़ना है. That is more than sufficient for you to clear this particular exam. Okay, so what are the different type of questions? Different type of questions and the number of questions in different subjects. So each of this subject, mathematics, physics as well as chemistry is going to have total 30 questions. 30 questions रहने वाले हैं, उसमें से आपको 25 solve करना है. Okay, so each of the subject is going to have total 30 questions और उसमें से आपको 25 solve करना है.
Okay, 10 questions with answers as a numerical value are asked, but out of those 10 questions, हर एक सब्जेक्ट में आप देखोगे क्या हो रहा है यहाँ पर कि हर एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ दोज 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप वाले, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें आपको लिखना है उसमें ऑप्शंस नहीं होने वाले, तो उनमें 10 में से आपको 5 ही सॉल्व करने होते हैं. ओके, सो 25 क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एंड 25 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री. टोटल क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 90 क्वेश्चंस रहेंगे. उसमें से आपको कितने टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 75 क्वेश्चन सॉल्व कर. ओके, ये 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे रहेंगे. और टोटल मार्क्स कितना रहेगा? मैक्सिमम मार्क्स दैट यू कैन गेन फ्रॉम दिस एग्जाम इज 300 मार्क्स. ओके, 100 मार्क्स फॉर ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट्स. मैथ्स के लिए 100 मार्क्स रहेंगे, फिजिक्स के लिए 100, केमिस्ट्री के लिए 100. Marking scheme. So since it is a competitive exam, so you should expect negative marking, but the negative marking is there only in the first part, that is MCQ वाले जो questions है उनमें सिर्फ negative marking रहेगा. So for each of the question you will have +4 marks. और एक सही question के लिए आपको +4 marks मिलेंगे. For every negative question, every wrong answer, you will be deducted -1 marks. Okay. जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है जहां पर आपको आंसर टाइप करना है, देयर इज नो ऑप्शंस गिवन, वो क्वेश्चंस में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. उसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा. ओके, ओके, देन वी कम टू द बी आर्किटेक्ट पेपर. बी आर्किटेक्ट पेपर, इट इज फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू ऑप्ट फॉर आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्सेज. ओके, तो इसमें भी आप देखोगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा, बट ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ पार्ट which is going to be पेन एंड पेपर टाइप. दैट इज ड्राइंग का एक पार्ट रहेगा इसमें, वो आपको कैसे देना है? पेन एंड पेपर पे देना है. ओके, अगेन लैंग्वेजेस अवेलेबल हियर, देयर इज इंग्लिश, देयर इज हिंदी, देयर इज आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन अगेन 3 hours. एंड पेपर्स की अगर बात करते तो बी आर्किटेक्ट वाला जो पेपर रहेगा उसमें मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेक्शन रहेगा, द सेकंड सेक्शन इज फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड द थर्ड सेक्शन इट इज फॉर प्लानिंग ड्राइंग टेस्ट. तो ये जो ड्राइंग टेस्ट का पेपर है पार्ट 3, ये आपका पेन एंड पेपर वाला होगा. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे आर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. ओके, अगर बी प्लानिंग का आपको पेपर देना है तो उसमें एक मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर रहेगा, और तीसरा पार्ट जो है इसमें ये प्लानिंग टेस्ट रहेगा. ये प्लानिंग टेस्ट वाले क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे? एमसीक्यू टाइप ही है. ओके, दे आर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. सो आर्किटेक्चर में आप देखोगे मैथमेटिक्स है, उसमें भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है एंड क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल वैल्यूज. अगेन सेम तरह से आप जैसे देख सकते हो कि बीटेक वाले पेपर में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ भी पूछे जाएंगे. एक सेक्शन रहेगा जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एमसीक्यू क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है. न्यूमेरिकल टाइप वाले में ऑप्शंस नहीं रहेंगे, उनमें आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है और उसी का आंसर आपको देना है. एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर बात करते हैं, सेकेंड पार्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है या फिर लॉजिकल रीजनिंग होता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. ड्राइंग एप्टीट्यूड, ये आपको पेन एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर है. इसके लिए आपको कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं देना, इसके लिए आपको पेन एंड पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ऊपर इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. प्लानिंग में आते हैं तो इसमें भी जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चंस रहेंगे. अगेन यहाँ पर +4 फॉर बोथ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू एज वेल एज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस. Every correct answer you will get +4 marks. In MCQ type questions, for every wrong answer you are going to lose 1 mark. Numerical type questions में again no negative marking. ठीक है. प्लानिंग में यहाँ पर एक अलग पार्ट सिर्फ रहेगा प्लानिंग का. प्लानिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, लेकिन वो भी MCQ टाइप रहेंगे. एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है वो भी MCQ टाइप क्वेश्चंस. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े अलग है. 82 क्वेश्चंस है बी आर्किटेक्ट में और 105 क्वेश्चंस है बी प्लानिंग में.
दोनों ही पेपर्स 400 मार्क्स के लिए। मार्किंग स्कीम अगेन जैसे मैंने आपको बताया, +4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क इन द MCQ टाइप क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है उनमें आपको किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, ड्राइंग टेस्ट की अगर बात करते तो उसमें 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, देयर विल बी ओनली 2 क्वेश्चन, और उनके लिए आपको 100 मार्क्स रहेंगे, 50 मार्क्स ईच। सो यहाँ पर आप देखोगे देयर आर टोटल मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। 30 रहेंगे ऑफ कोर्स, 20 MCQ टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस एंड 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे वो 50 रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल यू विल गेट अगेन +4 मार्क्स -1 फॉर निगेटिव आंसर। ड्राइंग टेस्ट में किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर ड्राइंग बेस्ड पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। ओके, सो टोटल 82 क्वेश्चंस you have to solve in B Architect paper for 400 marks। बी प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप देखोगे 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 30, 20 कंपलसरी MCQ टाइप क्वेश्चंस एंड 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। ओके, एप्टीट्यूड अगेन 50 क्वेश्चंस हियर। प्लानिंग बेस्ड जो MCQ टाइप क्वेश्चंस है यहाँ पर 25 रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपको टोटल कितने 105 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है फॉर 400 मार्क्स। फाइनली रिजर्वेशन की अगर बात करते हो तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट दे हैव 15% रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर देम देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ 7.5%। नॉन क्रिमिनल यानी कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 27% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी अब एक अलग पार्ट रिजर्व किया गया है। 10% इज फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज देयर इज अ टोटल रिजर्वेशन ऑफ 3%। ओके, so this is all about the exam, guys. If you have any doubt, please feel free to ask in the comments, and we'll reply to those questions as soon as possible. Okay, thank you very much and have a good day.